Hello students, I am Priyanka Jagtap. I am going to teach you physics. So, under physics, there are basically two main types. You can categorize physics in thoroughly two different types. What are these two different types? First is microsystem and second is macrosystem. So what comes under microsystem? Under microsystem, we study atomic physics, molecular physics, nuclear physics. Okay, and in macro system we study classical mechanics. So classical mechanics deals mainly with macroscopic domain that includes mechanics, electrodynamics, optics and thermodynamics. Okay, so let's start with mechanics. If we think about mechanics, then there is most important topic which comes under mechanics, that is rotational dynamics. ओके, सो रोटेशनल डायनामिक्स जो है वो हम मैकेनिक्स के अंडर स्टडी करते हैं. दैट मीन्स व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ फोर्स एंड मोशन. Okay, so thoroughly mechanics is categorized into three parts, that is static, kinematics and dynamics. Now what is static? In static, the objects are at rest position. That means object moving position में नहीं रहता है. Object is at rest position. Okay. Second, kinematics. So what is kinematics? In kinematics, object is moving. Okay, object is moving, but we are not considering their force. We are only considering that object is moving and we find out the terms related to motion of objects, right, without considering cause of motion. Okay, and last is dynamics, that today we will study dynamics. So what is dynamics? Motion of object by considering cause of force. That means under dynamics we study object which are in motion with considering force. That means what is happening when we are applying the force, right? That is cause of force, or you can say cause of object is important in dynamics. Okay, that means under dynamics we are studying motion of object by considering cause of object. Okay, so let's start with rotational dynamics. So rotational dynamics जो है वो basically two हिस्सों में बांटा जाता है. That means if you have to study rotational dynamics, then first of all you should know what is circular motion. Okay, so thoroughly you can divide rotational dynamics under two parts, that is circular motion and rotational motion. So if you go for what is rotational motion, so rotational motion is nothing but the motion in which all particles of the body performing circular motion is called as rotational motion. Okay, that means इसका meaning क्या है? The motion in which all particles of the body, जो भी आप बॉडी ले रहे हो, जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो, दैट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. ओके, एंड उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का एवरी पार्टिकल मोशन में रहता है एंड वो सर्कुलर मोशन जो है वो अटेन करता है. दैट मीन्स द मोशन इन विच ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन. ओके, सो इतना तो आप समझ चुके होंगे कि रोटेशनल मोशन स्टडी करने के लिए हमें सर्कुलर मोशन पता होना चाहिए, राइट? सो इन 11th स्टैंडर्ड वी ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज सर्कुलर मोशन, बट वी हैव टू ब्रश अप. व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सो सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट मोशन विच इज along the circumference of circle is known as circular motion. Okay, motion which is along circumference of circle is known as circular motion. So ये तो हो गया definition, right? But circular motion have two possible ways. That means circular motion have two possible ways means exactly what it means
it means that circular motion can be done either by horizontal way or by vertical way, right? So if you go for horizontal circular motion, then first diagram आपको दिख रही है. First diagram shows that there is a horizontal circular motion. That means like this. Okay, this is horizontal circular motion, and second part is vertical circular motion. That means like this. Okay, so to understand this clearly, let us consider two examples. Okay, what are the two examples? First is merry-go-round and second is sky swing. Now you can see two images. First image is the example of horizontal circular motion. Okay, that means merry-go-round. आपको याद होगा जब आप बचपन में मेले में जाते थे, दैट टाइम देयर इज वन राइड, उसको मेरी गो राउंड बोलते थे, राइट? हॉर्स पे आप बैठते थे, हॉर्स इज फिक्स. ओके, हॉर्स जो है, हॉर्स की पोजीशन फिक्स है, आप उस हॉर्स के ऊपर बैठे हो एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन दैट राइड स्टार्ट, व्हाट हैपन्स, आप एक ही जगह पे हो, आप हिल नहीं रहे हो, राइट? वो राइड स्टार्ट हो चुकी है, आप उस घोड़े पे ही हो. उसके बाद राइड जब स्टार्ट होती है, देन यू ऑल्सो come into motion, right? So that is circular motion, that means horizontal circular motion. आप इस पोजीशन पे हो, आप इस हॉर्स पे बैठे हो, right? After starting the ride, you are observing that there is motion and this is horizontal circular motion, right? So this is the best example to study horizontal circular motion. Now next is what? Sky swing. Okay, so sky swing is what? आप बैठते हो झूले में, राइट? सपोज आप इस पॉइंट पे हो, आफ्टर स्टार्टिंग दिस राइड झूला स्टार्ट होता है, राइट? एंड आप सर्कुलर मोशन में आते हो. ओके, सो ये जो मोशन आप जो देख रहे हो, जो मैं आपको रोटेट करके दिखा रही हूँ, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन. Okay, so this is vertical circular motion and this is horizontal circular motion. Okay, so what are the characteristics of circular motion? क्या है characteristics? So first is it is an accelerated motion. So what is mean by accelerated motion? हम क्यों circular motion को accelerated motion कहेंगे? Because जैसे कि आपको पता है, आप देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक पॉइंट या फिर एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पे होता है, राइट? आफ्टर अटेंडिंग मोशन वो ईच एंड एवरी पॉइंट को रोटेट होता है एंड उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है, राइट? सो एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट एट इंस्टेंट ऑफ टाइम. ओके, सो आपको पता है वेलोसिटी changes with time, उसको क्या बोलते हैं हम? Acceleration, right? So as you know that velocity changes with time in circular motion, so we can say that it is an accelerated motion. Okay, and second characteristics is it is a periodic motion. Now what is periodic motion? During the motion the particle repeats its path along the same trajectory, right? सो सेम ट्रैजेक्टरी के साथ पार्टिकल जो है वो रिपीटेडली मोशन में आ रहा है, सो हम इसको पीरियोडिक मोशन बोल रहे हैं. ओके, सो दैट्स इट. दीज आर दी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. नाउ सर्कुलर मोशन जो है वो स्टडी करने के लिए हमें फिजिक्स के कुछ टर्म्स लगेंगे. एंड व्हाट आर दीज टर्म्स? फर्स्ट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड इज एंगुलर वेलोसिटी एंड next is angular acceleration. Now what these three parameters shows us? See, I am giving you one example to understand what are these three parameters. Okay, so suppose one man is traveling on a bicycle. Okay, he is driving a bicycle on a straight road. Okay, वो स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही है. वही मैन अगर
कर्व्ड रोड पे ट्रैवलिंग कर रहा है, दैट मीन्स वो कर्व्ड रोड पे ट्रैवलिंग कर रहा है मतलब वो सर्कुलर मोशन में आ रहा है, दैट मीन्स वो एंगल चेंज कर रहा है। ओके, सो वहाँ पे सिर्फ सिंपल वेलोसिटी नहीं होती है, वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होती है। ओके, सो ऑलरेडी यू स्टडीड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन 11th स्टैंडर्ड, बट वी विल यूज this displacement, velocity and acceleration in terms of angular displacement, in terms of angular velocity and in terms of angular acceleration. Okay, so we will study one by one, that is क्या formula है and how we can use. Okay, so you can see a picture. In this picture you can clearly observe that one side there is linear motion and other side there is rotational motion. Now if you see in linear motion क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम x से डिनोट करते हैं, वही हम रोटेशनल मोशन में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम एंगुलर पोजीशन से डिनोट करते हैं, दैट इज थीटा। ओके, दैट मीन्स लीनियर मोशन में जब पोजीशन चेंज होती है तो हम इसको x बोलते हैं, राइट। रोटेशनल में वो एंगल के साथ चेंज होता है तो हम उसको एंगुलर पोजीशन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। लीनियर मोशन में हम सिंपली वेलोसिटी बोलते हैं, डिनोटेड बाय v। इन रोटेशनल मोशन वेलोसिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एक्सप्रेस की जाती है, ओमेगा से उसको डिनोट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सीलरेशन। लीनियर मोशन में सिंपली एक्सीलरेशन जो है आपका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, दैट इज एक्सीलरेशन। बट इन रोटेशनल मोशन वहाँ पे हम एंगुलर एक्सीलरेशन देखते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा। ओके, सो इन 3 बेसिक टर्म्स के बाद आपको 3 इक्वेशंस दिखेंगे, दैट इज मोशन इक्वेशंस बोला है उसको। ओके, 3 मोशन इक्वेशन, दैट इज x इज इक्वल टू वी टी, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन बोलते हैं इसको, सेकेंड इज v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी एंड थर्ड इज x इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ये बेसिक इक्वेशन है। यही इक्वेशन रोटेशनल मोशन में आपको थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, इन टर्म्स ऑफ थीटा, ओमेगा एंड अल्फा ऐसे लेने पड़ते हैं, राइट। बिकॉज जब सर्कुलर मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, दैट मीन्स डेफिनेटली एंगल के साथ पोजीशन चेंज होगी, एंगल के साथ वेलोसिटी चेंज होगी एंड एंगल के साथ एक्सीलरेशन चेंज होगा। ओके, सो एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, these all are the terms which are analogous to position, velocity, acceleration. Okay, so that's it. यहाँ पे फिर आपको दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में क्या डिनोट करते हैं हम उसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज उसको लीनियर इनर्शिया बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। एंड इन रोटेशनल मोशन में वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टर्म इज न्यूटन सेकेंड लॉ। लीनियर मोशन में मतलब आप स्ट्रेट लाइन में बोल सकते हो, इफ ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग लीनियरली, दैट मीन्स वहाँ पे सिंपली F इज इक्वल टू ma आता है, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन, हमें फोर्स मिलता है। बट वही अगर हम रोटेशनल मोशन में देखेंगे तो हमें वहाँ पे टो इज इक्वल टू आई अल्फा ऐसे होता है, राइट। टो इज इक्वल टू आई अल्फा। टो इज नथिंग बट फोर्स, okay, which is equal to I is moment of inertia and alpha is angular acceleration. So angular acceleration into moment of inertia आपको force मिलता है। okay, next is momentum। momentum आपको पता है P is equal to mv आता है linear motion में, वही rotational motion में होता है L is equal to I omega। L को हम बोलते हैं angular momentum। ओके, मतलब मोमेंटम ही हो रहा है, बस एंगल के साथ हो रहा है तो हम उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, राइट। एंड विच इज गिवन बाय फॉर्मूला I इंटू ओमेगा। ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या दिलाता है, किसकी वैल्यू दिलाता है, एंगुलर मोमेंटम की। ओके, नेक्स्ट इज वर्क। वर्क लीनियर मोशन में कैसे होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट D से डिनोट किया है, फोर्स F से। वही रोटेशनल मोशन में क्या होता है, वर्क इज गिवन बाय
toe into theta. Theta is angular position, right? And toe is what? Your force, that is force into angular position. This is your work in rotational motion. Okay, last point is kinetic energy. लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी हम हाफ mv² लेते हैं, रोटेशनल मोशन में हम काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर लेते हैं. ओके, हाफ I इज फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, उससे आपको काइनेटिक एनर्जी मिलती है रोटेशनल मोशन में. ओके, ये जस्ट मैंने आपको बेसिक फॉर्मूलाज बताए, बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक टर्म्स बताए, स्टार्ट्स फ्रॉम पोजीशन टू काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमें इस रोटेशनल डायनामिक्स टॉपिक्स में रिपीटेडली यूज़ करने हैं. ओके, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हाउ वी कैन यूज़ दीज फॉर्मूलाज इन दिस टॉपिक. जस्ट ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है एंगुलर पोजीशन का, एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर एक्सीलरेशन का, जो कि ऑलरेडी आपने 11 में पढ़ा है, फिर भी हमने इसको ब्रश अप किया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन, जो है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट व्हाट, कि वहाँ पे यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन होता है. दैट मीन्स व्हाट? ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, दैट मीन्स एग्जाम्पल क्या है इसका? आप देख सकते हो, अर्थ जो रोटेट होती है, दैट इज मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट होती है. ओके, सो एग्जाम्पल फॉर यूसीएम इज व्हाट? मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. ओके, सो यहाँ पे यूसीएम में स्पीड ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट रहता है, तो क्या होता है कि ये जो सर्कुलर मोशन है यूसीएम, इसमें आपका जो सर्कुलर मोशन है ये हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल रहता है. एंड आपको पता है 11th स्टैंडर्ड में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा था. तो जो फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर होता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, राइट? सो यूसीएम जो है इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स के इसमें एक्सप्रेस करते हैं. ओके, एंड सेकेंड टाइप इज नॉन यूसीएम. सो व्हाट इज नॉन यूसीएम? इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज varying means is changing, it is not fixed, it is not constant, इसको हम नॉन यूसीएम बोलते हैं, राइट? इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज changing, varying, then it is called as non-UCM. So what are the examples of non-UCM? कोई भी डेली लाइफ के आप एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ फैन, when fan is switched off or on, the speed of the particles of the fan go on increasing or decreasing. Okay, that means it doesn't remain constant. Okay, this is your non-UCM. So that's it. So today we study rotational dynamics. rotational dynamics में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, बेसिक देखा, जो कि हमें इस टॉपिक में आगे लगने वाला है. नाउ इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो यूसीएम आता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसके एप्लीकेशंस क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, देन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये क्या होता है, ये कंसेप्ट कब यूज़ होती है. दीज ऑल थिंग्स वी विल स्टडी in this topic. Okay, so stay tuned to study all concepts regarding physics. Thank you.